Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to start new topic of chapter 6 staffing, that is selection process. In my last lecture, I have discussed with you some case study questions of previous topics of chapter 6 staffing. The topics which I have covered earlier was recruitment, internal sources, external sources of recruitment, then staffing process, steps involved in staffing process. All I have discussed with you in my last lecture. Now in this lecture I am continuing with the next topic of this chapter, that is staffing, that is selection. What is selection, beta? Selection can be defined as discovering most promising and most suitable candidates to fill up the vacant job position in the organization. Selection is the process of choosing from among the candidates from within the organization or from outside the organization the most suitable person for the current position or for the future position. In selection, the number of rejected application is generally more than the selected candidate. That is why selection is considered as a negative approach. सिलेक्शन क्या है बेटा? सिलेक्शन वो डिस्कवर करना मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सिलेक्शन में हम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज़ करते हैं और उसको करंट पोजीशन या आपकी फ्यूचर पोजीशन के लिए अपॉइंट कराते हैं. सिलेक्शन एक नेगेटिव अप्रोच है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड होती हैं दैट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब. सो इट इज़ अ नेगेटिव अप्रोच. सिलेक्शन सेकेंड स्टेप है आफ्टर रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन इज़ देयर, जिसमें हम रिक्रूटमेंट में जो भी एप्लीकेशन इन्वाइट होती हैं, एप्लीकेशन कलेक्ट होती है फॉर द पोस्ट, उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. सो इट इज़ अ नेगेटिव अप्रोच ऑल्सो. नाउ सी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. Process of selection is steps involved in selection process. Number 1, preliminary screening. Number 2, selection test. Number 3, employment interview. Number 4, reference check. Number 5, selection decision. Number 6, medical exam. Number 7, job offer. And number 8, contract of employment. ये process of selection है. In selection process, various steps are performed which are given below. Number 1, preliminary screening. After application have been received, they are properly checked as regarding qualification etc. by screening committee. A list of candidates to be called for employment test made and unsuitable candidates are rejected altogether. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब होता है प्राइमरी सिलेक्शन. जब आपके पास प्रिलिमिनरी स्क्रीन का मतलब होता है प्राइमरी सिलेक्शन. आफ्टर एप्लीकेशन में एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है और प्रॉपर्ली चेक होने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह के थ्रू स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग कमेटी उसको स्क्रीन कर लेती है, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बन जाते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जिनका हमें एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेने हैं और जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं ऑल टुगेदर. दैट इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. ये फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें हम स्क्रीन करके मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट कर देते हैं फॉर द जॉब. इसमें जो है आपकी अगर मान लो जो 1 पोस्ट है तो 10 और 12 और 15 20 कैंडिडेट्स आप लोग कॉल करे जाते हैं फॉर द इंटरव्यू. देन नंबर 2 इज सिलेक्शन टेस्ट. That organization prefer to conduct the written test to find out the practical knowledge of the candidate. Generally organization जो है written test को prefer करता है ताकि उसे candidates की practical knowledge का पता चल जाए. But this type of test to be conducted depends on the requirement of the organization. ये लेकिन ये test जो है organization की requirement के पे डिपेंड करता है. और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बेटा. नंबर 1, इंटेलिजेंस टेस्ट. दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी पर्सन का IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए वी न्यू दिस इंटेलिजेंस टेस्ट. इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ जजिंग अ पर्सनस एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट. ये वो इंडिकेटर है जिससे हम पर्सन की एबिलिटी को जज करते हैं टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट. Number 2 is aptitude test. This test is conducted to find out the potential of learning new job in the candidate. How quickly the candidate can learn new skills and new method. This steps helps to know how the candidate will be performing in future. Aptitude test वो टेस्ट है जिसमें हम एक कैंडिडेट की कैलिबर देखते हैं कि वो कितना जल्दी लर्न कर रहा है या कैच कर रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितनी क्विकली वो अपने स्किल्स को यूज़ कर रहा है टू लर्न द न्यू मेथड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है इन द फ्यूचर. दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट. Then see the next test, that is personality test.
पर्सनैलिटी टेस्ट ये भी आपका किस लिए कंडक्ट होता है, ताकि हम ह्यूमन के बिहेवियर को पता कर सकें कि वेदर ही इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस टेस्ट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट. द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, whether candidate is having positive and negative approach and how much initiative he will be taking while performing the job. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इंटेलिजेंस का जो है पर्सनैलिटी टेस्ट कराते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कैंडिडेट कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है. नेक्स्ट टेस्ट इज ट्रेट टेस्ट. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग. ये टेस्ट ट्रेट टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम पर्सन की नॉलेज को चेक करते हैं. ये फाइंड आउट करते हैं कि उसको अपना टेक्निकल मतलब प्रोफेशनल और टेक्निकल कितनी नॉलेज है फॉर डूइंग एनी जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. Next test is interest test. This test is conducted to find out the type of job in which candidate has more interest, as all the people have fascination from some job or others. देखो, एक कैंडिडेट एक्सपर्ट होता है अपनी जॉब में, दूसरा उसका एक फैसिनेशन होता है किसी और वर्क को करने के लिए. तो ये फाइंड आउट करना इंटरेस्ट टेस्ट में कि उसका इसके अलावा और कहाँ पे इंटरेस्ट है और कौन सी और जॉब वो परफॉर्म कर सकता है इन अ बेटर मैनर. दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट टेस्ट. नाउ नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू थर्ड स्टेप है और सिलेक्शन प्रोसेस का. जब आपने ट्रेड टेस्ट वगैरह के थ्रू किसी भी टेस्ट के थ्रू एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, देन इंटरव्यू इज़ देयर. दिस द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज़ टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट कितना सुटेबल है, टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट. और उसके सारी बायोडाटा वगैरह के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि वो उसके अंदर और उसकी इन्फॉर्मेशन निकल आती है. टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब विद डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन. और कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को बताना, इसके लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा जाता है. देन रेफरेंस चेक. अगर कोई भी पर्सन किसी भी कैंडिडेट के रेफरेंस से आ रखा है, एम्प्लॉयर जो है इन्वेस्टिगेशन कराता है, रेफरेंस जो सप्लाइड करता है एप्लीकेंट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म. ही अंडरटेक अ थॉरो सर्च इनटू कैंडिडेट्स फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड एक्सेट्रा. इसके चेक करने के लिए ही हम आपका कैंडिडेट का रेफरेंस चेक करते हैं. Then selection decision. Our list of candidates who cleared the employment test, interview test and reference check is prepared, and then the selected candidate are listed in order to the merit. तो अब उसमें हम एक आपका selection decisions आ जाते हैं. इसमें हम list of candidate बना लेते हैं as per their टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, रेफरेंस चेक के बाद, और उसमें जो है मेरिट के अकॉर्डिंगली उनको जो है उसमें रख देते हैं इन ऑर्डर पे. देन नंबर 6 इज medical physical examination. A qualified medical expert appointed by organization should certify whether the candidate is physically fit or not. इसको फाइंड आउट करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराते हैं. फिजिकल एग्जाम होता है कैंडिडेट का, ताकि हम उसकी हेल्थ और फिजिकल पोजीशन को चेक कर सकें. देन लास्ट इज द जॉब ऑफर. आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्लियर्ड ऑल हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग हिम एन अपॉइंटमेंट लेटर. और जब सारा कैंडिडेट सारी हर्डल्स को पूरा कर लेता है, तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट अपॉइंटमेंट लेटर. और देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज देयर. आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर, द कैंडिडेट हैव टू गिव हिज एक्सेप्टेंस. और जब वो एक्सेप्टेंस दे देता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की साइड से, तो एक सिग्नेचर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल्स, आवर्स ऑफ वर्क, मोड ऑफ टर्मिनेशन, सब कुछ मेंशन होता है. तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है. इसके थ्रू आपका कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है फॉर द organization to work in the organization. I hope you all understand. Note down all the things properly in your copy. Your T2 is starting from 7th, तो उसका T2 का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर लिया है. देन अगेन आई एम टेलिंग यू, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग इज देयर. डू योर वर्क प्रॉपरली इन द कॉपी. लर्न फॉर योर T2 एग्जाम. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.